We are going to the people who had filed are going to file for contempt because village council election को delay करके they have it's a contempt of court on the high court order that 7th of first week of November के पहले एक election होना था. State Election Commission ने इसको नहीं माना है. That's a clear contempt of court. Many times we have worked together on the Bru rehabilitation. But the Prime Minister, I have never met him once in my life, and I don't think Prime Minister is even accessible because there are many people who are around the Prime Minister who probably are now are saying that you should meet them first, then the Prime Minister. So if the Prime Minister, he's given Union Territory to Leh Ladakh, Jammu. He talks about, he's passed a bill called Citizenship Amendment Act which gives rights to displaced Hindus from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. Give us rights. But I'm not going to, as I said before Pinaki, I'm not going to compromise on what I have promised to my people. I will give something. I'm not in this business. One more thing, I'm not interested in fighting the next election. I'm not fighting for the MLA in the next election. I'm only here to give something to the people, and then I want to also do other things in life. I'm doing my duty. मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ. कर्तव्य पद बनाया है ना, मैं भी अपना कर्तव्य कर रहा हूँ. कर्तव्य करने के बाद मैं भी आपके जैसे साधारण इंसान जैसा रहना चाहता हूँ. मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं. आप अमित शाह हैं? इट इज नॉट अवर डिमांड. नहीं, ये ऑफर आपको अमित शाह ने बोला है? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट मंगल तिब्रम्मा सपोर्ट कर रहा है. नहीं, देखिए ये सब सवाल. देखिए, अगर आज आपको बिरयानी नहीं दिया, आज आपको चखुई दिया या फ्राइड राइस, ये ऑफर राइटिंग में भेजो ना. आपके थ्रू क्यों भेज रहे हैं? डायरेक्टली बुलाओ और राइटिंग में भेजो कि हम आपको तिपरा लैंड नहीं दे सकते हैं, ये ऑफर कर रहे हैं, राइटिंग में दो. ये क्या है कि दिल्ली में जाकर चुपचाप बैठकर बात करें. और दिल्ली में जब भी हम लोग गए हैं तो बात हुआ है कि नहीं 20 सीट में आप 12 में लड़ो, 8 में लड़ो, 7 में लड़ो. ये क्या बात है? हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं क्या? हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं? हम लोग लालची, मुझे पैसा का दरकार है. आप लोग राइटिंग में दीजिए ना, आप क्या देना चाहते हैं? टेरिटोरियल काउंसिल, स्टेट काउंसिल, सेपरेट स्टेट, यूनियन टेरिटरी, जो भी देना है आपको आप बोलिए, राइटिंग में दीजिए. आपका क्या ऑफर है? একজন এসটি স্টুডেন্ট না এরকম লোক, নন এসটি মহিলা, তাদের পরিচয় অনেক দিনের, কলেজে কিংবা ইউনিভার্সিটিতে তারা একসঙ্গে পড়াশোনা এবং পরিচয়, অনেক দূর থেকে তারে বাইকে নিয়ে গেছে কুমারঘাট টাউনে. তখন এটা কয়েকজন মোস্ট লাইকলি দ্য রুলিং সাপোর্টার্স মাইট হ্যাভ সিন ইট. দেয়ারফর দে হ্যাভ পিক আপ দ্য বয় হু হ্যাড born the girl, saying, why you have taken this girl with you? If he had intention of taking her away, he would not come to the city, to the town, but he took him to Kumarghat. Therefore, some people, they took him to the upstairs of the building, and they very strongly, very seriously, they have tortured him. And they went to the police FIR. Now we are trying to talk about it, get the details of it, and we have very strong observation about this. Why? Even ST used to take non-ST. Non-ST used to take ST also. Yes, they know each other, so they may have some reason of caring someone of their own friend. So why they have taken this violence in their hand? But police is not arresting any one of them. Those who have tortured and beaten that very boy. So I think this police should start taking action drugs में. एक बड़ा बीजेपी का लीडर कमलपुर में अरेस्ट हुआ था या उसको एप्रीहेंड किया गया था विथ 200 किलोज ऑफ गांजा. अभी तक मालूम नहीं है, यूट्यूब में पकड़ा गया था, जनजाति लीडर है. अभी तक क्या उसका खिलाफ कार्रवाई हुआ है? नोबडी नोज. पुलिस ऑल्सो शुड नॉट बी स्कैर्ड. 2-3 महीने बाद प्रशासन फिर से बदलेगा. पुलिस को भी समझना चाहिए कि पुलिस पॉलिटिशियन के बात सुनकर अगर ऑपोजिशन को धमका के डराते रहे तो बाद में किसी के लिए अच्छा नहीं है. पुलिस शुड बी न्यूट्रल एंड फेयर. देयर आर मैनी गुड पुलिस ऑफिसर्स इन त्रिपुरा. प्राइवेटली सब मुझसे बात करते हैं.
दे आर वेरी गुड ऑफिसर्स, लेकिन उनको भी लगता है कि कहीं कहीं इंटरफेरेंस बहुत है, ये इंटरफेरेंस बंद होना चाहिए। So crimes are increasing. How to फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, रेपिस्ट है, रेपिस्ट होता है, वो नहीं देखता कौन ट्राइबल है, कौन बंगाली है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, तो कौन क्रिश्चियन है। रेप का कोई जात नहीं होता, रेपिस्ट का कोई पार्टी नहीं होता है, और रेपिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता है। जो रेपिस्ट आज तिपरासा को रेप कर रहा है, वो अपने परिवार में अपना ही फैमिली मेम्बर को भी रेप कर सकता है। तो मैं रेप को कभी भी कम्युनल कलर से नहीं देखूंगा। सेकेंड चीज़, पुलिस हैज़ टू डू द जॉब, लेकिन अगर हमने सुना है आज तक कि ये सब जो होता था ये पहले मैं क्या यूपी बिहार में सुनता था कि बड़े बड़े नेताओं के बच्चे लोगों ने ये सब किया है। आज अगर अपने ही स्टेट में ये हो रहा है तो हमको क्वेश्चन करना चाहिए कि आज हम क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करके हमको क्या मिल रहा है। ये जो क्रिमिनल्स हैं ये कोई पार्टी के नहीं हैं, एक समय सीपीएम के संग थे, आज बीजेपी के संग है, कल कोई और पार्टी पावर में आएगा वो उनके साथ भी जुड़ जाएंगे। पुलिस को क्रिमिनल की तरह उनके संग एक्शन लेना चाहिए, एंड दे शुड बी पुट इन जेल। Women are the backbone of our society, and what I have seen in Tripura is that women have been objectified and women are being misused. Obviously, it's a matter of great concern, and I'm very unhappy with the situation here because rapists are running away scot-free, and people are protecting them. People should not be protecting them in the position of power. What is your view on the role of the police? The police has obviously not done its job. अगर 2-3 लोगों को उठाकर बीच रास्ते में उनको दिखा देते ना, तो ऑटोमेटिकली ये सब गुंडे लोग लाइन में आ जाते हैं। अगर पकड़ के, जैसे आंध्र प्रदेश में पकड़ के बीच रास्ते में इनको दिया था ना, सबको समझ में आता है। ये लोग एक ही भाषा समझते हैं, डंडा का भाषा। इनको पकड़ के सबके सामने बेइज्जत करो, डंडा मारो, लाइन में लाओ, पुलिस लॉकअप में डालो, जैसे योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहा है, बुलडोजर लगा रहा है, करो, 2 मिनट में लाइन में आ जाएंगे। इनको आपने अगर उसको पनाह दिया तो बाद में यही आपको मारेगा, यही आपको खाएगा। यही चीज़ पुलिस नॉट ओनली इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ड्रग्स सेम प्रॉब्लम। आज मैं जब ब्रू सेटलमेंट में गया, ड्रग्स ऑन द राइज, हम लोग सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ते हैं, ड्रग स्मगलर को क्यों नहीं पकड़ते? बड़ा ड्रग स्मगलर कौन है, उसको पकड़िए। सो दीज आर थिंग्स विच हैव, जब पुलिस ऑफिसर ही खुद मर जाता है, दुर्गा रंगखोल वॉज रन ओवर बाय ड्रग पेडलर्स, आज तक उसके फैमिली को कोई नौकरी मिला है, कोई रिलीफ मिला है? तो पुलिस का भी तो आत्मबल गिरता है। So I don't blame the police. I feel sad for police because police is controlled by politician and politician is controlled by criminals as of today. You? Yes, one more point. Few days before, Koidin Agarwal, that Tripura Motha is doing a lot of corruption. Please ask them how much money they have given to ADC, especially for the village committee. Is there an amount, 50,000 or 20,000 rupees? Is it an amount? No, why is village council election not being held? That's why. So despite High Court's intervention, High Court has given an order and still they are not doing it. Yes, आप लोग counter questions भी पूछे कभी कभी। What is the money? What have they given to ADC? They have not given. So now they are blocking through court not to hold election in ADC. This avoiding almost 9 lakhs voters of ADC for only some few people, those who want to block our development. So why don't you ask them also why they are running away from the election? We can do whatsoever is, whatever provision is available in the constitution to approach the court again for, I think, violation or contempt of court. Why they are not holding election within 10 of November? You can go to them also, ask them. They have given fund for this council, not council, this, what do they call it, in a town. Town, they have given so many provision. Smart cities. Yeah, but they are not given to ADC. They are denying the right of almost 9 lakh voters in ADC, favoring only 40-50,000 of population in block. So therefore, our appeal to all of you through media to the people that on 12th, as our honorable chairman had said, we want to
set an example in the state. Peacefully we can do many things. And we're going to show the state people a miracle in the next 2-3 months. So therefore, we will be grateful if you can also share our opinion and ask many other questions relating to the public litigation, public's interest. We are not playing politics here. Politics we are never done. That's why we have achieved something. The people, those who are coming with the national parties, they are playing politics with some money, with some temptation, but we are not playing any politics. We stayed with fight for our constitutional right. So this is what we are doing on 12th, as our honorable chairman had explained. It would be very peaceful and interesting. I believe, Maharaj, even Agartala town may not be able to contain and I think provide space for our people to come. Many thousands will not be able to reach the field also. So anyway, we will expose and we will display our right, our interest for constituting for Greater Tripoland and our Tansa also. So thank you. पिनाकी, just one last. ये जो अलायंस का बारे हमेशा क्वेश्चन आता है, मैं थक गया हूँ उसका जवाब देते देते। कभी किसी के संग मैंने लंच खाया तो वो न्यूज़पेपर में, कभी एयरपोर्ट में बाय चांस किसी से मिल गया तो वो न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, कभी किसी को सोशल फंक्शन में मिला तो वो सोशल मीडिया में। आपको लगता है कि ये जो र्यूमर्स आते रहते हैं ये कौन फैला रहा है? आई थिंक सब लोग तिपरा मोथा को सामने रखकर अपना घर का दाल बना रहे हैं, ठीक है। तिपरा मोथा एज अ चेयरमैन मैं बोल रहा हूँ क्लियरली, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। मैं वीर विक्रम का नाती हूँ, किरीट विक्रम किशोर का बेटा हूँ। मुझे पैसा, पोस्ट और पद नहीं कमाना है, मुझे अच्छा नाम कमाना है। और अगर मैंने आज अपने लोगों से धोखा दे दिया तो कल मैं कहाँ जाऊँगा? आई एम अ भूमिपुत्र, आई एम हानिपुसा। अगर मैंने अपने लोगों को जैसे दूसरे लीडर्स लोग ने झूठ बोलकर बड़ा बड़ा बात करके लास्ट मोमेंट में बिना कुछ राइटिंग में लेकर अलायंस किया तो मैं और मेरे लोग मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे और मैं उसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस बार मैं जीतूंगा तो जीतूंगा, हारूंगा तो हारूंगा, लेकिन इस बार अगर राइटिंग में अश्योरेंस नहीं मिला तो हम फाइट करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कौन कितने पानी में है। आई वॉन्ट टू मेक दैट वेरी क्लियर। 12 तारीख को वंस अगेन मैं पीसफुल चाहता हूँ। बहुत लोग यहाँ में ट्रबल करने की कोशिश करेंगे, टेंशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं वीर विक्रम का नाती हूँ, मैं कभी भी त्रिपुरा में कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बंगालीज भी हमें सुने, मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम्स, मणिपुरीज, चा बागान वर्कर्स, एवरीवन हमें सुने और हमारा जो भाषा होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए होगा और कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं होगा। We are going to file, the people who had filed are going to file for contempt because village council election को delay करके they have it's a contempt of court on the high court order that 7th of first week of November के पहले इलेक्शन होना था। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इसको नहीं माना है। दैट्स अ क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 10,323 को क्या और हम केस फाइल कर रहे हैं 10,323 टीचर्स के लिए। देखिए, किसी को आधे रास्ते में छोड़ना नहीं चाहिए और मैं 10,323 टीचर्स से एक वोट भी नहीं चाहता हूँ। अगर मैंने उनको हेल्प किया तो ये मेरा पर्सनल हेल्प होगा, ये तिपरा मोथा का हेल्प नहीं होगा, ये महाराजा का पर्सनल हेल्प होगा, क्योंकि मैंने उनको एक कमिटमेंट दिया है और उसका पूरा खर्चा, कपिल सिब्बल है, लॉयर्स, जूनियर्स है, उसका पूरा खर्चा, उनका आना जाना ऊपर का सबका खर्चा मैं दे रहा हूँ और मैं देते रहूँगा। अगर उनको कुछ रिलीफ मिलता है तो क्या बुराई है। आज जो 10,323 है टीचर्स है, 90% है जो गांव में पढ़ाते थे। आज टीचर्स नहीं है गांव में, स्कूल्स में, और इन लोगों को अगर वापस नौकरी मिल गया तो हमें गांव में ही तो हेल्प होगा। ये जो किया गया है, मैं वोट के लाइन में नहीं देख रहा हूँ, मैं उनको रिलीफ देना चाहता हूँ। बहुत लोग जेन्युइन केसेस है, बहुत लोग मरे हैं, बहुत लोग हैव डाइड बाय सुसाइड, तो उनके फैमिली के बारे में तो थोड़ा सोचना चाहिए। या फिर हम सिर्फ सोचेंगे वोट के लिए और वोट के बाद फिर से धोखा देंगे। तो आई थिंक वी हैव टू डू समथिंग। हम कर रहे हैं इसमें। प्लीज़ शांति से आइए,
अपना मैसेज दिखाइए, अपना थानसा दिखाइए और शांति से अगरतला में हम लोग अपना जनसभा करेंगे। आई एम आस्किंग ऑल द पीपल फ्रॉम द हिल्स टू कम, प्लीज़ कम। बहुत लोग बहुत जगह में हम लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग डरो मत। अब सिर्फ 2 महीना बाकी है, हमको अपना पावर दिखाना है, हमको अपना थानसा दिखाना है, हमको अपना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सबके सामने दिखाना है। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा अगर हमने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड किया है। तो जो लोग हमको रोकना चाहते हैं, जो लोग हम लोगों को डराना चाहते हैं, जो लोग हम लोगों को धमकाना चाहते हैं, जो लोग हम लोगों के सर में बंदूक रखकर अलायंस करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, आप 12 तारीख का रैली देखिए और जो भी करना है सम्मान से कीजिए। हम लोग बुकुंग बारा लोग सम्मान चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, राइट्स चाहते हैं। हमें ना आपके पैसे में, ना आपके धमकाने में कोई शौक है या कोई डर है। कौन बंदूक रखते हैं आप जानते हैं त्रिपुरा में, आप जानते हैं कि कौन बंदूक रखता है किसके सर में। बंदूक नॉट लिटरली, पर आप जानते हैं कि कौन कैसा प्रेशर होता है, क्या ईडी का प्रेशर होता है, क्या खरीदने का बात होता है। आप जानते हैं सिर्फ त्रिपुरा में नहीं है, पूरे इंडिया में हो रहा है। आप जानते हैं कि क्या धमकाया जाता है। लेकिन जब आप लॉलीपॉप देंगे, मैं लॉलीपॉप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अपने 13 लाख त्रिपुरा को कुछ देना चाहता हूँ। आप उसके बारे में बात कीजिए, मैं बात करूँगा। आप अगर हमको पर्सनल फेवर्स करेंगे या धमकाने की कोशिश करेंगे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तब हम आपको इलेक्शन में जवाब देंगे। ये जो ऑडिट है ना, जो आपके सामने मीडिया को दिया, 2014-15 का है। 2014-15 में कौन था? सीपीएम था। 2019, 20, 21 तक कौन था? जीके राव था, एडमिनिस्ट्रेटर था अंडर स्टेट गवर्नमेंट। अभी तो ऑडिट चल रहा है। तो यही तो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ पीपल आर नॉट एजुकेटेड, अगर कोई और चिट्ठी लिखता है, ड्राफ्ट करता है और आदमी लोगों को बोलता है कि जाके चिल्लाओ, तो यही होता है। करोड़ एडीसी में आ रहा है, ठीक है। आप ये सवाल प्लीज चीफ सेक्रेटरी से पूछिए, क्यों पॉलिटिशियन से पूछे तो कुछ मिलेगा नहीं, ये लोग जुमला करते रहेंगे। आप चीफ सेक्रेटरी से एक बार पूछ लीजिए या ट्राइबल अफेयर्स सेक्रेटरी से पूछ लीजिए कि वो 1300 करोड़ वर्ल्ड बैंक से वो पैसा एडीसी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आया है कि नहीं। वो लोग बोलेंगे अभी तक एक पैसा नहीं आया। तो एडीसी के पास कैसा आएगा जब स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं आया? तो ये लोग अपना होमवर्क नहीं करते हैं और तब पॉलिटिक्स करने के लिए ये लोग ये करते रहते। करने दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन लोगों ने, जनजाति मोर्चा ने 2018 में बोला था स्टेट काउंसिल देंगे। आज क्या हुआ है वो स्टेट काउंसिल? क्या हुआ है? तो उनको भी थोड़ा सा, ठीक है, पब्लिक जवाब देगी इनको। आई डोंट हैव टू से मच। आप 12 तारीख का हमारा रैली देखिए। हमने देख लिया उनका रैली कैसा रहा खुमुलुंग में। अब आप हमारा रैली देखिए। There's been no discussion. Of course, people come individually and talk to me, but there's been no discussion at any level to say that there will be an alliance. Our line is very clear. We are fighting for our constitutional solution and a demand for Greater Tripura land for our survival and existence. That is a demand. Anyone who gives it to us in writing, we will consider it. If they don't give it to us in writing, there's no problem. We will fight on our own, and we will see after that. If there is call for a secular See, democratic, they are saying, not alliance. Pinaki, I'll tell you something. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ. The indigenous people, the Tiprasa people, are not fighting for power. We are fighting for rights. We are fighting for a survival and existence. Those people जिसके पास पहले से rights है, वो लोग पावर के लिए फाइट करते हैं. हम लोग के पास राइट्स नहीं है. पहले राइट्स मिल जाए, उसके बाद पावर के लिए फाइट करेंगे. पहले आप राइट्स हमें राइटिंग में दे दीजिए, उसके बाद पावर के लिए बात करेंगे. जिनके पास राइट्स है वो लोग पावर के लिए फाइट करते हैं. हमारे पास राइट्स नहीं है. पहले राइट्स के लिए हम फाइट करेंगे. In that case, if they appeal also, you want to attend that meeting? राइटिंग में दीजिए ना. अपील करने से क्या होता है? आप हमको राइटिंग में दीजिए. आपका क्या व्यू है, हमको क्या दे सकते हैं आप राइटिंग में? No, I'm talking about. अपील नहीं. देखिए, आई एम वेरी कैटेगरी, आई एम टेलिंग यू. सी, आई एम नॉट लाइक अदर नेताज. मैं डायरेक्टली बात बोल रहा हूँ. मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूँ कि हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए फ़ाइट कर रहे थे, अब ऑल ऑफ अ सडन हम सेक्युलरिज्म के लिए फ़ाइट करेंगे. सेक्युलरिज्म तो पहले से हम हैं ही. हमारे पार्टी में मुस्लिम्स हैं, एससीज हैं, हिंदुस्तानी हैं, बंगालीज भी आ गए हैं, तिपरासाज हैं. हम तो अपने एरिया में हमने तो सेक्युलर फ्रंट करके तो हमने एडीसी जीता है. माई पॉइंट इज़
दैट कोई भी अगर किसी को भी अलायंस चाहिए तो राइटिंग में बताइए कि आप तिपरासा को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देना चाहते हैं, राइटिंग में दीजिए। वो अपील करने से नहीं होगा, राइटिंग में दीजिए। अगर आप राइटिंग में नहीं देंगे तो मैं अपने लोगों को जाके क्या बोलूँगा? हम अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, वो लोग पावर के लिए फाइट कर रहे हैं। जब तक राइट्स नहीं मिलेगा तब तक पावर का कुछ मतलब नहीं रहता। राइट्स आने के बाद हम पावर के लिए फाइट करेंगे। पहले राइट्स ले ले, अधिकार ले ले अपना 13 लाख तिपरासा के लिए।